गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने बताया था कि फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा इंटीजर्स का दिया था। अब हम लोग इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ेंगे। हमने इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि व्हाट आर इंटीजर्स, और हम लोग अब इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इंटीजर क्या है, what are integers, okay, how the integers write on the number line. You can see here, this is the zero of integer, okay, this is zero integers, and right side the zero integer the numbers increases 1 2 3 4 5 up to the infinity, and left side of the zero number decreases like -1 -2 -3 -4 -5 up to minus infinity. Okay, it means -1 is, it means -1 is largest negative integers. Okay students, so you can easily understand the which integer is smaller and which integer is larger. So you can see minus 5 is smaller than -4, and -4 is smaller than -3, -2 is greater than -3, and -1 is the largest negative integer. And like this, 0 is not negative, 0 is not negative or positive integer. Okay, so number in integers we are going to study some basic points. Okay, so carefully you should study carefully. Here you can see, we know that when we move from left to right on number line, value increases. This show the -4 is greater than -5. Similarly, -3 is greater than -4. I already told you. So it's very easy, and -1 is largest negative integers. Like this, 0 is neither positive nor negative, okay, and the number without negative symbol are called positive integers. Okay, so any number we write like this, all are called integers, and integers do not include fraction or decimal numbers. This point you have to understand carefully, because I put here a star. Okay, I just put a star on this topic. Okay, you should understand that integers do not include what? Fraction or decimal. Okay students, fraction like 1/2, okay, fraction like 1/2, 3/4, okay, 5/7, and decimal like 2.5, 1.2. These are not integers. So simply you can understand कि डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर को हम लोग इंटीजर नहीं कहते हैं। ठीक है, तो केवल
हम लोग नेगेटिव इंटीजर, ओके, नेगेटिव इंटीजर 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर के कलेक्शन को ही हम लोग इंटीजर कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो just I move on another topic. You can see here, ultimately in this chapter we have to also study the addition, subtraction, multiplication and division, but in part 1 session you are going to study addition and subtraction. Okay students, so there are some rule, you can see here, rule number 1 क्या कहता है, when both number have same symbol we add and put the symbol. Okay, it's very clear. If there is plus sign of both numbers, the result will be in plus. Okay, and if there is negative sign in both symbol, the result will be in negative number. Okay, जैसे suppose that 1 plus 1 is equal to 2 and 2 is positive integer, it is plus 2 or 2 you can write. Okay, like this, minus 2 and minus 3, minus 2 and plus minus 3, okay, is equal to minus 5. Okay students, because both integers are negative integers, so the sum of negative integers is equal to in negative. So it's very clear, rule number 1, when both numbers have same symbol we add and put the symbol same. Okay, rule number 2, you can see, rule number 2 is when both number have different symbol we subtract and put the symbol of number having the large numeral value. Okay, like this, you can see here example, minus 2 and plus 3 is equal to what? Plus 1. Okay, plus 1 or 1 you can write. Okay, तो यहाँ क्या है कि 2 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, बड़ा नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे और जो नंबर बड़ा है उसका साइन पुट कर देंगे। ठीक है, यू कैन सी ऑल्सो द सेकेंड एग्जाम्पल, 2 प्लस माइनस 3, तो नंबर बड़ा क्या है, यदि साइन नहीं देखे तो 3 बड़ा है, 3। ओके, माइनस 2, तो 3 में से 2 गया, क्या हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ देखेंगे कि साइन किसका बड़ा है, 3 का, तो 3 क्या है, माइनस में है, 2 क्या है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो रिजल्ट क्या है, -1। 7 प्लस -5, तो -5 का साइन बड़ा है, सॉरी -5 का साइन क्या है, छोटा है, 7 क्या है, बड़ा है, तो 7 में से 5 को माइनस कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, +2 या 2। ओके, -7 ऑल्सो यू कैन सी हियर, -7 प्लस 5 इज इक्वल टू, देखेंगे 7 बड़ा है नंबर, इसका साइन क्या है, माइनस,
तो रिजल्ट जो होगा सब टेक करके वो माइनस में आएगा। ओके, तो इस प्रकार से रूल 1 एंड रूल 2 को हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू कैन सी क्वेश्चन हेयर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है कि ये एक नंबर लाइन है। फॉलोइंग नंबर लाइन, following number line you can see here. Following number line show the temperature in degree Celsius at different place on a particular day. Okay, so you can see here there is, this is 0. Okay, this is 0 एंड 0 के बाद देखिए राइट साइड में 5, 10, 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ 0 यू कैन सी हियर -5, -10। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट the temperature of all the place marked on it। जितने प्लेस यहाँ मार्क किए हुए हैं इसका टेम्परेचर लिखना है हमें। ठीक है, जैसे कि ये है श्रीनगर है, शिमला है, ठीक है, ऊटी है, बेंगलोर है, इन सब का टेम्परेचर हमें लिखना है। तो दैट्स वेरी सिंपल टू राइट द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो देखेंगे कि 0 से राइट साइड क्या है? 0 से राइट साइड यहाँ शिमला है। ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर क्या है? दे रहा है 5, यानी 5 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शिमला का है। ऐसे ही हम सबका लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें आंसर इसका, आंसर ए का आंसर देखें, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेज आर, टेम्परेचर सभी प्लेस का क्या है? बेंगलोर का क्या है? 22 डिग्री सेल्सियस। कैसे? आप देखिए, बेंगलोर यहाँ दिया हुआ है, ये बेंगलोर है, तो ये रहा आपका 20, और 20 से आगे एक है तो ये 21 है, और 21 के बाद क्या है? ये 22 है। तो बेंगलोर जो है इसका टेम्परेचर कितना है? तो 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक ऐसे ही सबका टेम्परेचर दिया हुआ है। ऊटी का देखें तो ऊटी है यहाँ कितना? 15 से 1 पॉइंट पहले है, तो 15 से पहले क्या आता है? 14। तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है? ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। ओके, वैसे ही शिमला का देखिए, शिमला का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ देखें ये है शिमला। ठीक है ना, तो ये जो शिमला है, शिमला का टेम्परेचर कितना दिखा रहा है नंबर लाइन पे? 5 दिखा रहा है। ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर 5 हो गया। श्रीनगर का देखिए, श्रीनगर का देखिएगा तो यहाँ 0 से लेफ्ट साइड यानी माइनस में जा रहा है, तो 0 के बाद क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो श्रीनगर है वो किस पॉइंट पे है? 0 के लेफ्ट साइड 1 एंड 2 पे है। ठीक है, तो दिस इज -2 डिग्री।
ठीक है, सेल्सियस श्रीनगर का है। इट्स ओके। तो ये बहुत आसान है, आप नंबर लाइन पे टेम्परेचर नंबर को देख के ये सबका लिख सकते हैं। लाहौल स्पीति के देखिए -8 डिग्री सेल्सियस है, ये है 6 के इधर, 5 के इधर है, 5, 6, 7, 8, ये है लाहौल स्पीति, इसका है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए था। बी दिया था कि द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, इस नंबर लाइन पे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? बेंगलुरु है, इसका टेम्परेचर सबसे अधिक है बच्चों। तो और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किसका है? तो -2 डिग्री है, किसका? श्रीनगर का। माइनस सबसे स्मॉलेस्ट किसका है देखिए, तो -8 डिग्री है, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री है। ये सबसे कम टेम्परेचर है। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है? बेंगलुरु का। और सबसे कम टेम्परेचर की कहाँ है? -8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर बी में कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर। तो देखिए बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस है एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल टू -8। तो डिफरेंस क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया? -22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? डिफरेंस हो गया द लार्जेस्ट टेम्परेचर बिटवीन द largest and highest and smallest. Okay, highest and lowest temperature. It's okay. So this is question number B. Move from this slide. Question number C. Question number C asks the temperature of Srinagar is equal to -2 degree. Okay, and the temperature of Lahaul Spiti is equal to -8 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखिए -2 डिग्री -2 डिग्री एंड -8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -2 प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? ये डिफरेंस हो गया। क्योंकि सबका डिफरेंस भी बताना है, तो क्वेश्चन नंबर डी देखें। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला का कितना हो गया? श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये श्रीनगर का टेम्परेचर एंड शिमला का टेम्परेचर देखेंगे इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री। तो हमने क्या कहा था कि दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट है, एक है प्लस में एक है माइनस में। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और बड़े वाले का साइन रहेगा, तो 5 में से -2 हट गया, तो क्या बचा? +3, तो 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिंस 3 डिग्री सेल्सियस इज
smaller than 5 degrees Celsius. Okay, therefore temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Okay, so you can see the next question number C. Okay, the temperature of Srinagar okay, so D, we have already studied this question. The question number 1 has been completed. Next question is question number 2. You can see here, in a quiz, possible positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect. Okay, so if Jack score in 5 successive round, where कितना 25 -5 -10 15 10, तो what was his total at the end? जो जैक है उसने 5 टाइम्स में इतने सारे मार्क्स उसको आए, ठीक है। 25 मार्क्स मिला, -5 -10 15 एंड 10, इन सबको ऐड करेंगे तो एट लास्ट उसका कितना मार्क्स होगा? तो यू कैन सी हियर आंसर। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? स्कोर कितना उसने किया? तो 25 -5 10 15 एंड 10, इन सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये 25 और जो ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनको एक साथ हम ऐड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ ऐड करेंगे, तो दोनों नेगेटिव -10 और -5 इज इक्वल टू -15 एंड 10 plus 15 is equal to plus 25. Hence, the 25 minus 15 is equal to 10 and 10 plus 25 is equal to 35. So, finally, the Jack score 35 marks. Okay. So, this is your question number 2. Now, move on question number 3. Question number 3, it is also simple question. ओके, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, ठीक है, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हुआ कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया टेम्परेचर। मंडे के बाद टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया, ठीक है। ऑन ट्यूसडे को व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, है ना। मंडे को टेम्परेचर कितना था? यहाँ देखिए -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को वो गिर गया, है ना, ड्रॉप हो गया, यानी कम हो गया। कितना से कम हो गया? तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम? ऑफ कोर्स माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड,
कितना गिर गया टेम्परेचर? 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था? तो -5 डिग्री और -2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री क्या हो गया? माइनस हो गया। तो -5 एंड -2 इज इक्वल टू कितना हो गया ट्यूसडे को टेम्परेचर? -7 डिग्री। ओके, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर इंक्रीज 4 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री बढ़ गया। तो टेम्परेचर वेडनेसडे को कितना हो गया? तो ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 डिग्री था, वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, तो -7 में 4 डिग्री प्लस कर देंगे। तो -7 + 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -3 डिग्री। ओके, तो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो हमें आप क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, इसको मैं फिर से दोबारा से आपको समझाऊंगा। दोबारा से हमको समझाना पड़ेगा तो मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार मैं समझाऊंगा। देखेंगे यदि कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत है तो उस कंसेप्ट को मैं दोबारा से आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ए प्लेन is flying at the height of 5000 मीटर above the sea। कह रहा है कि एक प्लेन जो है सी लेवल से 5000 मीटर एबव फ्लाइंग कर रहा है। ओके, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लीजिए कि ये सबमरीन है, ठीक है, और ये क्या है? एरोप्लेन है। ओके, तो बोल रहा है कि वर्टिकली यानी ये यहाँ से सबमरीन से प्लेन का डिस्टेंस क्या है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाइट ऑफ प्लेन कितना था? तो 5000 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ प्लेन एबव द सी लेवल। तो समंदर से जो प्लेन है 5000 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, और ये जो सबमरीन है वो सी लेवल से कितना नीचे है? तो 1200 मीटर यानी 1200 मीटर सी लेवल से नीचे है। तो इस दोनों का डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा? तो देयरफॉर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इक्वल टू क्या हो गया? एक तो ये 5000 ऑलरेडी सी लेवल से ऊपर है, फिर ये भी सी लेवल से नीचे है 1200। तो दोनों को क्या करेंगे? सम कर देंगे। दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा? 6200 मीटर ये हो गया दोनों का डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। देखिए, आप लोग जब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे और हमारी लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट।
ओके, एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। ठीक है, नेक्स्ट डे, अगले दिन, एक दिन उसने 2000 रुपीज़ क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। ठीक है बच्चों, तो जब पैसा हम बैंक में जमा करते हैं तो क्या होता है, हमारे अकाउंट में वो ऐड हो जाता है। ठीक है, और जब हम पैसा अपने अकाउंट से निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारे अकाउंट से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, then how will you represent the amount of deposit? Find the balance in मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो पैसा निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितना पैसा था ये भी बताना है। ठीक है, तो डिपॉजिट अमाउंट क्या था, डिपॉजिट अमाउंट क्या था, तो 2000 था, डिपॉजिट अमाउंट 2000 था। पैसा निकाला कितना, तो 1642। तो हमने 2000 रुपीज़ जमा किए बच्चों। ठीक है, और उसमें से हमने 1642 रुपीज़ को क्या किया, निकाल लिया। तो हमारे पास कितना बचा, तो 2000 माइनस 1642 इज इक्वल टू रुपीज़ 305.58। ये हमारे अकाउंट में बैलेंस बच गया। दिस इज योर आंसर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन योर कॉपी ऑल्सो। Let me move on. Next question. This is question number 6. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी ध्यान से देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। यहाँ ये नंबर लाइन में देखिए डायरेक्शन में, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, तो पॉइंट ए से, है ना, पॉइंट ए ये है। ठीक है, यहाँ से रीता जो है पॉइंट बी तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और फिर पॉइंट बी से मूव 30 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट बी से मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट एलोंग द सेम रोड। उसी रोड पे फिर वह बी से कहाँ आ रही है, सी पे। ठीक है, तो if the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west, by which integer will you represent the final point from A। ठीक है, तो यहाँ देखिए रीता मूव करती है टुवर्ड ईस्ट बाय पॉजिटिव इंटीजर, बट सी मूव in opposite direction, means Rita move west is represented by a negative integer। ठीक है, जब ये बैक कर रही है उसी रास्ते पे 30 किलोमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी कितना है, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर वो उसी रास्ते से वापस बैक आ रही है, तो माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस टू ए से टू सी कितना है, 20 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर इज इक्वल टू माइनस 10 किलोमीटर। उसका ए से सी क्या डिस्टेंस हो गया। Thus, Rita final position from A to C is 10 kilometer. Okay, minus 10 kilometer. You can see here minus 10 kilometer is answer. Okay, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक देखिए मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो मैजिक स्क्वायर, कौन से स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो उस स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर बोलते हैं जिसका सम किधर से भी ऐड करें सेम आए। जैसे हमने इसको हॉरिजेंटली ऐसे ऐड करे तो भी जो आएगा 5 1 4, ठीक है, 0, ठीक है। ये ऐसे जो भी ऐड करेंगे क्या आएगा 0, ऐसे कोई भी ऐड करेंगे क्या आएगा 0, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, 0। तो हमें क्या आना चाहिए, किधर से भी ऐड करें हम इसको हॉरिजेंटली ऐड करें यानी रो वाइज ऐड करें या कॉलम वाइज ऐड करें या हम लोग इसको वर्टिकली ऐड करें, ठीक है ना। हम लोग इसको वर्टिकली ऐड करें डायगोनली तो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो उसको हम लोग मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो जैसे टेकिंग रो माइनस क्या है 5 प्लस -1 प्लस -4 इज इक्वल टू क्या होगा 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड दूसरा रो देखें, ये क्या है -5 प्लस -2 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 हो गया। और ये थर्ड रो यदि ऐड करते हैं तो 3 - 3 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ अब हम कॉलम वाइज इसको ऐड करें तो कॉलम वाइज क्या हो गया 5 - 5 5 प्लस -5 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको ऐड करें तो 1 प्लस -2 प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके, एंड थर्ड कॉलम हम जब यूज करें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि +4 -4 प्लस 7 -3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो हमने ऐसे ऐड किया सबको तो ये सब 0 आया, ये भी 0 आया, ये कॉलम वाइज भी 0 आया। अब हमें क्या बचा है डायगोनली ऐड करें। तो जब डायगोनली ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो -3 -2 और +5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ओके, अब ऐसे इस डायगोनल को हम लोग ऐड करें तो -4 प्लस -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, ये -6 होगा। ठीक है, तो ये तो 0 हुआ लेकिन ये -6 हो गया, इसलिए ये क्या होगा, ये मैजिक स्क्वायर, दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली आप किसी भी मैजिक स्क्वायर को रो वाइज ऐड करें ऐसे या कॉलम वाइज ऐड करें ऐसे, ठीक है, या डायगोनली ऐड करें आप इसको ऐसे, तो सेम सम आना चाहिए, तो वो मैजिक स्क्वायर या मैजिक बॉक्स कहा जाएगा।
ठीक है। यदि सेम नहीं आता, ये सेम नहीं आया, तो ये दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। देखिए 2 नंबर, ये कह रहा है, इसको भी चेक करना है कि मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको चेक कीजिए, जैसे मैं बोला हूँ, पहले ये रोज वाइज ऐड कीजिए। तो ये रो वाइज ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये -9 हो गया, -9। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। अब कॉलम वाइज ऐड करें तो क्या होगा, ये ऐसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, -9, ठीक है। ये कितना होगा, -9, ये कितना होगा, तो -9। अब इसको डायगोनली ऐड करके देखें तो -6 प्लस -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। और -7 प्लस -3 प्लस 1 ऑल्सो इक्वल टू -9। ओके, तो ये रोज वाइज, कॉलम वाइज एंड डायगोनल वाइज सेम सम आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस बॉक्स इज ए मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल दिस सम आर इक्वल। ओके, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस, ठीक है, a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ देखिए दिया है a इजकल टू 21, b इजकल टू 18, ठीक है। तो इसको हमें इस पे क्या करना है, पुट कर देना है, a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, a इजकल टू 21, b इजकल टू 18, ठीक है। वी हैव a माइनस b इजकल टू a प्लस b, यही तो प्रूफ करना है हमें। तो पुटिंग द वैल्यू इन LHS इज इक्वल टू क्या, a माइनस b। ओके, तो क्या आएगा, 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 21 प्लस 18, ठीक है। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 39, ठीक है। 21 plus 18 is equal to 39. Is that clear? Putting the value in RHS. Okay. Putting the value of RHS is equal to A plus B is equal to क्या हो गया, 21 plus 19 is equal to 39. Since LHS is equal to RHS, hence verified. Okay. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या 118, बी का कितना दिया है 125। तो हमारे पास क्या है वी हैव ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो LHS में हम पुट करते हैं वैल्यू, तो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। ओके, तो LHS 118 माइनस 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा 118 प्लस 125 इक्वल टू 243। and if we putting the value in RHS equal to A plus B, then 118 plus 125 equal to 243. Hence LHS is equal to RHS. Hence LHS is equal to RHS. Hence verified. Okay, move on the next question, question number 3. Also you can see here A is equal to 75, B is equal to 84. Okay, A is equal to 75, B is equal to 84. So only we have to put the value of A and B into LHS and RHS. Okay, so this is LHS. So 75 minus 84 is equal to 159, and putting the value in RHS, A plus B is equal to 75 plus 84 is equal to 159. Hence the LHS is equal to RHS. It is verified. Okay, and next question is A, the value of A is equal to 28, B is equal to 11. We have A minus B LHS and X plus A plus B is RHS. तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा LHS में 28 माइनस 11 इज इक्वल टू 39, एंड जब RHS में पुट करेंगे तो 28 प्लस 11 is equal to 39. Hence it is also verified. LHS is equal to RHS. So hence it is also verified. Okay. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिंबल पुट करना है, बॉक्सेस जो खाली दिए हुए हैं उसमें हमें सिंबल पुट करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन यूजिंग द साइन ऑफ ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू इन द बॉक्सेस टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए -8 प्लस -4, बीच में क्या है बॉक्स है, उसके बाद क्या है -8 माइनस -4, तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। ठीक है, तो LHS और RHS इक्वल है, ग्रेटर देन है ना, स्मॉलर देन है, यही साइन पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा -8 और -4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 हो जाएगा, और -8 माइनस -4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -12 एंड इट इज -4, तो विच वन इज ग्रेटर देन, तो ऑफ कोर्स -4 इज ग्रेटर देन
minus 12. Okay, so you have to put this sign like this. Okay, minus 12 is smaller than minus 4. Okay students, are you understand? Okay, I hope you understand. अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बी। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? -3 + 7 - 19 बॉक्स है 15 - 8, ठीक है 15 - 8। तो क्या होगा? ये -15 इज स्मॉलर देन -2। ओके, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर सी को देखें। ये क्या है? 23 - 41 + 11। तो पहले क्या करेंगे? प्लस को ऐड कर लेंगे तो 23 और + 11 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 34 और 34 में -41 हो जाएगा तो क्या बचेगा? देखिए, तो बेसिकली LHS क्या बचा? -7 एंड RHS क्या है? -29। तो विच वन इज ग्रेटर? तो -7 इज ग्रेटर देन -21। ओके, तो इस प्रकार से आप इस साइन को पुट कर सकते हैं और ये सब भी साइन है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत आसान है इसको फिल करना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ठीक है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन दी टॉप मोस्ट स्टेप। मंकी जो है ये सबसे ऊपर जो है बैठा हुआ है। दी वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। वाटर लेवल जो है मंकी के पास से 9th स्टेप नीचे है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। वो पानी के पास पहुंचने के लिए वो 3 स्टेप एक बार में जंप करता है, तो वो फिर ऊपर 2 स्टेप बैक जंप करता है, ठीक है। तो इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर? तो वाटर तक पहुंचने के लिए कितना बार जंप करेगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने के बाद ही वांट्स टू गो बैक। अब वो पुनः अपने जगह पे जाना चाहता है, तो फॉर दिस उसके लिए है ना, ही जंप 4 स्टेप्स अप। 4 स्टेप्स वो अप जंप लगाता है, देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन। तो 4 स्टेप अप जंप करने के बाद वो 2 स्टेप डाउन जंप करता है। तो एवरी मूव, तो इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप? तो फिर टॉप में पहुंचने के लिए वो कितने बार जंप करेगा? क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन द रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, represent these moves in part 1 and 2 by the completing the following. A -3 + 2 minus what is equal to -8. Then
बी 4 माइनस 2 प्लस व्हाट 2 इक्वल टू 8। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वो फर्स्ट जब जंप करता है, ठीक है, तो वो कहाँ होता है? वो तो फर्स्ट स्टेप पे होता ही है, और एक बार में 3 स्टेप वो जंप किया, तो 1 + 3 = 4 स्टेप वो नीचे आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड जंप में क्या हो रहा है? वो सेकेंड बार फिर बैक हो जाता है 2 स्टेप, तो 4 स्टेप इसने नीचे उतरा है, 4 में से फिर ये 2 माइनस हो गया, तो वो कहाँ पहुँच गया? फिर सेकेंड स्टेप पे। सिमिलरली फिर थर्ड स्टेप में वो 3 स्टेप नीचे उतरा, तो 2 + 3 = 5 स्टेप। फिर 5 में वो -2 हो गया बैक, तो कितना कहाँ पे रहा? थर्ड स्टेप पे रहा। ओके, फिर फिफ्थ स्टेप में वो 3 पे है और 3 जंप किया, तो कहाँ पहुँच जाएगा? 6 स्टेप पे पहुँच गया। फिर 6 में से वो 2 बैक होता है, तो कहाँ वो रह गया? 6 स्टेप पे रह गया। ओके, लाइक दिस। सेवेंथ स्टेप 4 स्टेप से वो फिर 3 स्टेप जंप लगाएगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा? सेवेंथ स्टेप पे। फिर 2 बैक होगा, तो कहाँ ये पहुँच जाएगा? फिर वापस फिफ्थ स्टेप पे। फिर वैसे ही 9th स्टेप में वो 5 पे है, प्लस 3 स्टेप जंप किया नीचे, तो 8 स्टेप पे पहुंच गया। फिर वो 2 वापस आता है, तो 8 - 2 = 6 स्टेप पे वो फिर वापस पहुंच गया। फिर इसी प्रकार जब 11th जंप में वो 11th में क्या हो जाएगा? 6 + 3 = 9th स्टेप में वो पहुंच जाएगा पानी के पास, और ही विल रीच द 9th स्टेप इन 11th जंप। 9th स्टेप उसको आने में 11th जंप लगाने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ही जंप 4 स्टेप एंड देन जंप डाउन 2 स्टेप, ठीक है। तो ये ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये फिर जंप लगाएगा कहाँ से? 9th स्टेप से। वो अपने वापस जाना है उसको, तो एक बार में कितना जंप लगा रहा है? तो एक बार में कितना जंप लगा रहा है? सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस, ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन, ठीक है। तो 4 - 2, ओके, प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 2, 8 स्टेप, ठीक है। यहाँ देखें, वो यहाँ से 4 स्टेप जंप लगाता है, ठीक है। वो 9th स्टेप से एक बार में ऊपर 4 स्टेप जंप लगाता है। फिर यहाँ से 2 स्टेप वो क्या पीछे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आया, तो 5th स्टेप पे आया, यहाँ से 2 स्टेप फिर बैकवर्ड हो गया, तो 7 पे रह गया। फिर 7 से ये 4 स्टेप आगे जाएगा, तो कहाँ पे आएगा? थर्ड स्टेप पे आएगा। फिर थर्ड से ये 2 स्टेप बैक हो जा रहा है, तो 5 पे आया। फिर 5 से ये 4 स्टेप जंप लगाया, तो कहाँ पहुँच गया? अपने मंजिल पे पहुँच गया, ठीक है। तो कितना बार इसको जंप लगाना पड़ेगा? कितना बार जंप लगाना पड़ेगा? तो 10 द मंकी रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप इन 5th जंप, ठीक है। 5th जंप में ये अपने
मंजिल पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो थर्ड कह रहा था, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? -3 + 2 को कितने बार लिखना पड़ेगा? तो 8 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 ये कितने बार लिखना पड़ेगा? ये 8 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके -8 होगा, ठीक है। सिमिलरली 4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2 कितने बार लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4 4 टाइम, तब क्या मिलेगा हमें? 8 मिलेगा, ठीक है। सो 10 the sum 8 in B represent going up by 8 step। ओके, तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ आपका चैप्टर फर्स्ट इंटीजर का पार्ट 1 हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया। आप लोग अपना फीडबैक देंगे, जहाँ भी समझ में नहीं आएगी उस क्वेश्चन को फिर से आप पूछेंगे, हम दोबारा से उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको सभी चीज़ें, सभी कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चन ठीक ठीक से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।